Hello, I'm Prisha. I'm from Tamil Nadu, Coimbatore. I presented on the topic enhancing productivity in agriculture. Agriculture is like the backbone of Indian economy, and it's very essential that we pay focus to this particular field at least now, if not later, because this is the field which contributes more to GDP also. So it is very important that we youth get into this field and also try to boost the productivity in this particular field. And today it was a very nice experience to meet people from different states and to network with them, and most importantly to meet the man. You know, like sir was this close and I felt total goosebumps. So yeah, thank you for this opportunity. मेरा नाम आदित्य राज है और हम पटना ज़िले के रहने वाले हैं, बिहार से। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मेरे एसोसिएशन का कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के नेतृत्व में नेशनल यूथ पार्लियामेंट कराती है, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में होता है। और उसमें 18 से 25 साल के युवा हर राज्य से एक व्यक्ति चुन करके आता है एज ए स्पीकर। 2023 में हमने बिहार को रिप्रेजेंट किया था और मेरा वीडियो बहुत वायरल हुआ था और करंटली मेरे सोशल मीडिया पे 1,30,000 फॉलोअर्स भी हैं। और उसके बाद अभी मिनिस्ट्री की प्रोसेस, ये पहला ऐसा इवेंट है जहाँ पे सारे के सारे काम को माई भारत वॉलंटियर्स द्वारा किया गया है। सो जो यूथ पार्लियामेंट के विनर्स रहे, स्टेट विनर्स, उनके बीच में एक कंपटीशन अरेंज किया गया हर साल के विनर्स के बीच में। देन उसके जो विनर्स हुए उनका सेकेंड राउंड का एक कॉम्पिटिशन हुआ, उसके जो विनर्स हुए उनका थर्ड राउंड का कॉम्पिटिशन हुआ। देन फिल्टर करके 25 से 30 लोग सेलेक्ट हुए। वो 30 लोग अलग अलग कमिटीज़ में अलग अलग थीम्स पे एंकर कर रहे थे। एंड देन कल डिसाइड हुआ कि कल का एंकर कौन करेगा, एंड देन कल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसाइड हुआ कि आज का एंकर कौन करेगा। सो ये फिल्टरेशन का वो प्रोसेस था जहाँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकालने का वो सस्टेनेबल तरीका खोजा गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम कहना चाहेंगे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। Hello everyone, my name is Akhil Menon and I'm from Maharashtra. So I'm currently in my 4th year BTech and I've come here for the theme of making India a sporting and fit nation. So my main goal here was to come up with innovative solutions while utilizing the skills that I've learned in my college years, because sports is something that I personally connect with. I have played badminton at the state level, I've played volleyball at the district level, and since being a type 1 diabetic, I feel like sports is something that helps me keep going throughout my life. I'm Shilpa. I hail from Devbhoomi, Uttarakhand. And at this moment, I'm just reminded of the most historic words of Swami Vivekananda ji. Those were, "My dearest brothers and sisters of America." And that showed the word out loud and clear. We Indians, as a civilization, are very capable of steering the word, order, and thought process. And I'm really happy to be here sharing the stage with all the young leaders and the Yuva of India. Thank you so much for this opportunity. मेरा नाम अक्षिता भाटी है, मैं गोवा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मेरे को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहले मैं जो है मतलब यूट्यूब पे जो यूथ फेस्टिवल है उनके वीडियोस देखती थी, तो मेरा भी मन होता था कि मैं भी यहाँ पे जाऊँ। इतने टैलेंटेड लोगों से मिली, उनके आइडियाज़ जो है सुनने मिले, जो जिस तरह वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो उनके आइडियाज़ हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे डेवलप्ड इंडिया के लिए। सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मज़ा आया यहाँ पे। मैंने बहुत मतलब जो भी मेरे क्वेश्चंस थे, जो भी मेरे ट्रैक को लेकर, वो मैंने मेंटर्स से पूछे, उन्होंने भी बहुत अच्छे आंसर्स दिए वगैरह। थैंक यू। मेरा नाम परमप्रीत सिंह है, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। इट्स अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू कम ऑन सच अ बिग स्टेज. फॉर फर्स्ट टाइम आई विजिटेड Delhi, so I such feel a great experience. Emerging that it's a wonderful opportunity for every students and every working professionals. I think it should be considered at every year, so we can new youth can come and join us and we will bring the idea. So it's one of the fire stage performance of by. So thank you. मेरा नाम घनश्याम है, मैं कलाहंडी उड़ीसा से हूँ। आज का दिन सबसे ख़ास था मेरी ज़िंदगी में। आज हम जैसे सभी भारत का जितना भी रिप्रेजेंटेटिव है, हमने एक साथ मिले, बात किए, और मैंने तो एक इनिशिएटिव के तौर पे हर स्टेट का एक पर्सन का नंबर सेव कर लिया हूँ। मोदी जी के भाषण से हम काफ़ी प्रेरित हुए और बस अब इतना मोटिवेटेड है कि हम बैठा भी नहीं जा रहा है। इट्स लाइक वी आर ऑन फायर एंड वी आर डिस्टाइंड टू मेक आवर भारत विकसित बाय 2047। मेरा नाम अभिज्ञान रॉय है और मैं गोवा से आ रहा हूँ, भारतवर्ष के सबसे छोटे राज्य से आ रहा हूँ। और यहाँ पर मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, मैं तो पहले तो बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा प्रधानमंत्री मोदी जी का, क्योंकि यहाँ पर भारत मंडपम में उन्होंने एक
भारतवर्ष को एक जगह पे ला दिया है और मैं गोवा को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और जब नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे थे तब मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था कि जो जो चीज़ें मैं सोचता हूँ भारतवर्ष के बारे में, भारतवर्ष के भविष्य के बारे में, वो हर एक बार नरेंद्र मोदी जी ने हूबहू वहाँ पे ऐसा ही बोला है। क्योंकि जब 2047 आएगा तब मैं एक मध्यम वर्गीय नागरिक बन चुका होगा इस देश का, लेकिन तब भी मेरे रगों में ये एक ही बात दौड़ रही होगी, क्योंकि मैं भारत को विकसित भारत से एक श्रेष्ठ भारत बनाना चाहता हूँ। आज मैं 19 साल की उम्र में यहाँ पर आया हूँ, भारत मंडपम में, दिल्ली में, भारतवर्ष के दिल में आया हूँ, भारत के हर इंसान से बात कर चुका हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी को देख चुका हूँ। अब मेरे खून में, अब मेरे रगों में सिर्फ दौड़ रही है तो बस मोटिवेशन कि भारत को श्रेष्ठ भारत बनाना है। मेरा नाम सृष्टि पाल है और मैं उत्तराखंड से हूँ। मैं उत्तराखंड में रेशम माजरी से हूँ, जो एक बहुत छोटा सा टाउन है। और इतने छोटे टाउन से निकल के मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आज मौका मिला है अपनी बात रखने का, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है और यहाँ हर चीज़ मेरे लिए बहुत लर्निंग रही है। मैंने इतने सारे अच्छे दोस्त बनाए हैं, इतने सारे लोगों से मैंने इंस्पिरेशन ली है और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हम युवा लोगों को ये प्लेटफॉर्म दिया है सीखने के लिए, ताकि हम अपने देश के डेवलपमेंट में साथ दे सकें। और ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। मेरा नाम प्रिंसी मिश्रा है और मैं गोवा से हूँ। तो मैं पहली बार युवा फेस्टिवल के लिए आई हूँ, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के लोगों से मिलने मिला। वो लोग खुद बात कर रहे थे अगर हम नहीं बात कर रहे थे, उनके कल्चर के बारे में जानने मिला। अगर हम उनसे नहीं पूछ रहे थे वो लोग हमें खुद बता रहे थे। और पीएम हमारे घर में सबको नरेंद्र मोदी जी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उन्हें देख के। भले ही मैं उनके पास नहीं जा पाई, उनसे कुछ बोल नहीं पाई, पर उनकी जो स्पीच थी और जो तरीके से उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, सारे टॉपिक्स को, और उन्होंने सारे 10 टॉपिक्स, सारे प्रेजेंटेशंस इतने अच्छे से सुने, इतना अच्छा फीडबैक दिया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री होके वो कितने भी बिजी हो पर वो वक्त निकालते हैं अपने देश के लोगों के लिए, अपने युवा के लिए। मैं अंशुल खंडेलवाल जयपुर राजस्थान से हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आज़ादी के अमृतकाल 2047 की इस पदयात्रा में हमें सहभागिता प्राप्त कर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमें यानी एक गांव ढाणी और एक बच्चे को निकालकर एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लाना कि उनको सेल्फ कॉन्फिडेंट, अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट महसूस करें। एक भारत मंडपम के अंदर हमें छोटा इंडिया महसूस हो रहा है कि कैसे हम छोटे इंडिया को, पूरे इंडिया को एक भारत मंडपम में महसूस कर पा रहे हैं।